Hello dear students, I hope everyone is doing good and everyone is preparing well for your board examinations too, right? See, I am here again to bring another topic for you for explanation, and this is my first topic which I am uploading on my channel from economics, right? And the chapter which I am taking from macroeconomics today is unit number 5, which is balance of payments. The topics which I am going to cover today for you is meaning and example of BOP, components of BOP, and there are two components of BOP, current account and capital account. Okay, so without wasting time, let's move towards the explanation of all these topics, right? Okay, so let's start the explanation of the chapter balance of payments. You know, balance of payments is usually known as BOP, right? Let's start with the meaning of balance of payments first of all. See, you know that every country is engaged in economic transactions either within the country, that means within the domestic territory of the country, or outside the domestic territory of the country, that means with the rest of the world. This term rest of the world you already have done in national income, right? So the economic transactions which are occurring within the domestic territory are, they come under internal trade, and which are occurring outside the domestic territory comes under external trade. इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स अगर कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होती हैं तो उनको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड, और अगर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर होती हैं दैट मीन्स विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे कम अंडर एक्सटर्नल ट्रेड. अभी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन से मतलब है सेल एंड परचेज, राइट? BOP इज कंसर्न विद एक्सटर्नल ट्रेड. देखो, इफ अ कंट्री इज engaged in external trade, it keeps a record of all these economic transactions. This record comes under balance of payment account. Economic transactions अगर outside the domestic territory होती हैं तो वो sale and purchase जो होती है वो होती है export and import of goods and services. अब इन economic transactions का जो record होता है वो आता है BOP account में, that means balance of payments. So balance of payments is a systematic record of all economic transactions between its residents and residents of foreign countries during a given period of time. This is a very important element of this definition, during a given period of time, because BOP is a flow concept like national income. National income is also a flow concept. Balance of payment, because it is a flow concept, whenever we are मेकिंग अ BOP अकाउंट वी हैव टू मेक दिस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. जब भी हमें BOP का अकाउंट बनाएंगे तो बनाएंगे ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. ओके, हाउ वी कैलकुलेट BOP? BOP इज इक्वल टू एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स माइनस इम्पोर्ट पेमेंट्स. Export of goods and services, whenever a country is doing exports of goods and services, it receives foreign currency, and if it is making imports it has to make payments for those goods and services. So balance of payments means, देखो balance word आ रहा है ना BOP definition में, तो balance निकालते कैसे हैं? balance कैसे निकालते हैं हम? डिडक्ट करके, ठीक है ना? तो एक्सपोर्ट रिसिप्ट्स माइनस इम्पोर्ट पेमेंट्स. सिंपली for further explanation of this definition, let's take a practical example. Example of BOP. ठीक है, अभी इससे आपको और समझ में आ जाएगा clearly what is BOP. A country has imported petroleum products worth $25 billion and exported cotton products of $40 billion. एक कंट्री है, उसने इम्पोर्ट किए हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, मंगाई हैं जिनकी वैल्यू है $25 बिलियन, और कॉटन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं जिनकी वैल्यू है $40 बिलियन. ठीक है, ड्यूरिंग द सेम पीरियड. सी अगेन, दिस टर्म हैज़ कम, दिस फ्रेज हैज़ कम ड्यूरिंग द सेम पीरियड बिकॉज इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट. तो इसी पीरियड ऑफ टाइम में, इसी पर्टिकुलर पीरियड में दैट कंट्री हैज़ टेकन अ फॉरेन एड ऑफ $10 बिलियन. फॉरेन एड ली है इस कंट्री ने ऑफ $10 बिलियन. फॉरेन एड मीन्स, यू नो, असिस्टेंस, grant, help, right? The value is $10 billion and made investments in a petroleum company of another country worth $5 billion. और किसी एक पेट्रोलियम कंपनी में जो कि और किसी और कंट्री की अब्रॉड आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी, उस कंट्री में पेट्रोलियम कंपनी में इन्वेस्ट किया है जिसकी वैल्यू है $5 बिलियन. तो जब हम इस कंट्री का BOP कैलकुलेट करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम
तो सिंपली हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इनफ्लो माइनस टोटल आउटफ्लो. इनफ्लो मीन्स अभी क्या था ना, एक्सपोर्ट रिसिप्ट है ना, वी आर रिसीविंग, दैट मीन्स इनफ्लो. import payments, that means outflow. So total inflow minus total outflow. total inflow देखो कितना हो रहा है. total inflow हो रहा है, इंपोर्ट किया था पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एक्सपोर्ट किया था कॉटन प्रोडक्ट्स. जो एक्सपोर्ट किया था उसके लिए, क्योंकि हमने रिसीव किया था, इस कंट्री ने रिसीव किया था 40 बिलियन, तो एक तो हो रहा है 40 प्लस एक फॉरेन एड मिली थी इसको जिसकी वैल्यू थी $10 बिलियन, राइट. तो टोटल इनफ्लो हुआ 40 प्लस 10 दैट इज 50, राइट. आउटफ्लो कितना हुआ, इसने, इस कंट्री ने इंपोर्ट की थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट जिनकी वैल्यू थी $25 बिलियन, ठीक है, और एक पेट्रोलियम कंपनी में इन्वेस्ट भी किया था किसी और कंट्री की जिसकी वैल्यू थी $5 बिलियन. तो टोटल आउटफ्लो हुआ था 25 प्लस 5 दैट इज 30. So total inflow minus total outflow means 40 plus 10 50 minus 25 plus 5 30. So 50 minus 30 equals to $20 billion. That means इस particular period of time के लिए जो BOP calculate हुआ है इस country के लिए वो हुआ है $20 billion. Simply, I hope you have got the definition and the explanation is clear to you. Let's move towards the important points regarding balance of payment account. जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाती है कोई भी कंट्री, BOP अकाउंट बनाती है, तो कुछ पॉइंट्स होते हैं दैट हैज़ टू बी केप्ट इन माइंड, और उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंटिंग, राइट. लेट्स लुक एट ऑल दिस पॉइंट्स. Number 1 is transactions are recorded in the BOP account in double entry bookkeeping. Okay. डबल एंट्री बुक कीपिंग मीन्स क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड. जब भी BOP अकाउंट बनाते हैं तो एंट्रीज जो होंगी वो डबल एंट्री बुक कीपिंग के अकॉर्डिंग होंगी. दैट मीन्स क्रेडिट साइड में आएंगी रिसिप्ट्स और डेबिट साइड में आएगी पेमेंट्स. क्रेडिट इंक्लूड्स पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज और डेबिट साइड इंक्लूड्स पेमेंट्स मेड टू रेजिडेंट्स ऑफ अदर कंट्रीज, right. Each international transaction undertaken by country will result in a credit entry and debit entry of equal size. Okay. Next is, as international transactions are recorded in double entry accounting, the BOP accounting must always be balanced. बैलेंस होना चाहिए BOP अकाउंट, मतलब जितना अमाउंट डेबिट का है वो बिल्कुल इक्वल होना चाहिए टोटल अमाउंट ऑफ क्रेडिट के. देखो एक्चुअली ना प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है. BOP अकाउंट बैलेंस नहीं होता है, सरप्लस भी हो सकता है, डेफिसिट भी हो सकता है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. बट जब हम ऑफिशियल बनाते हैं BOP अकाउंट फॉर एनी कंट्री, इट हैज़ टू बी बैलेंस्ड. अब उसको बैलेंस करना पड़ता है, उसके लिए कुछ ट्रांजेक्शन्स होती हैं. दिस एग्जाम्पल जो अभी कैसे बैलेंस करते हैं हम, ये हम लेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में. ओके, आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट पार्ट. लेट्स कम टू द पॉइंट्स अगेन. द बैलेंसिंग आइटम एरर्स एंड ओमिशंस मस्ट बी एडेड टू बैलेंस द BOP accounts. This I will explain you further with elaborate example in my next part. The debit items and credit items are entered with a minus sign and plus sign respectively. ये तो रिसिप्ट हैं क्रेडिट साइड में, डेबिट है पेमेंट्स में, तो प्लस और माइनस साइन के अकॉर्डिंग लिखेंगे, राइट. तो दीज पॉइंट्स should be kept in mind while making BOP account. Okay, I hope this explanation is also clear to you. Let's move towards the components of BOP. See, components means the items which are included in BOP account. So there are only two items which are included in BOP account. One is current account and the other is capital account. Okay, current account and capital account. अब करेंट अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन्स आती हैं और कुछ ट्रांजेक्शन्स आती हैं कैपिटल अकाउंट में. कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स आती हैं, लेट्स सी. करंट अकाउंट इंक्लूड्स merchandise visible. Merchandise visible means export and import of physical goods. Okay, physical goods which can be touched and seen. Invisible export and import, that means export and import of services, right. Export and import of services. Invisible means which cannot be touched and seen, and that is services. This is goods, this is services. Okay. Next is unilateral transfers.
यूनिलेटरल ट्रांसफर्स ये आपने नेशनल इनकम में किया था. देखो, वेरी सून आई विल बी अपलोडिंग द टॉपिक्स, द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ नेशनल इनकम टू, बिकॉज दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, यू ऑल नो. Okay, let's come to the topic again. Unilateral transfer. Uni means single and lateral means sided. So one-sided transfers, one-sided receipts and payments. Okay. So current account includes merchandise visible, invisible export and import, unilateral transfers, and capital account includes capital movements. That is short-term capital movement, long-term capital movement, and changes in gold and exchange reserves. Let's take one by one the explanation, the transactions which comes in all these in both these account, current account and capital account. First one is current account. Okay, I told you that current account includes number one, merchandise visible, that is export of goods and import of goods. जो export होंगी goods उसके लिए हम कुछ ना कुछ receive करेंगे, वो entry होगी credit side में. और अगर import of goods करेंगे, that means when we are paying for imports it will be debited, ये debit side में record होगा. Next one is export and import of services, that is merchandise invisible trade. ठीक है. अब non-tangible, that means services. Export of services, whenever we'll export the services we'll get some receipts, तो ये आएगा credit side में. और अगर payments करेंगे services के लिए तो ये आएगा debit side में. ठीक है. सर्विसेज कौन सी? लेट्स टेक एग्जाम्पल्स लाइक शिपिंग सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस सर्विसेज, टूरिज्म सर्विसेज एक्सेट्रा. और सिमिलरली इम्पोर्ट ऑफ दीज सर्विसेज दैट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट साइड. सो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज इन क्रेडिट साइड एंड इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज इन डेबिट साइड. देखो क्या है, एक्सप्लेनेशन के साथ साथ ना आई वुड रियली सजेस्ट यू टू जॉट डाउन दी पॉइंट्स, बिकॉज ये जो एग्जाम्पल्स हैं ना जो मैं आपको बता रही हूँ, जब आप इसको एक्चुअली जब आप ब्रीफिंग करोगे ना, अपने लिए ब्रश अप करोगे नोट्स, तो ये आपको यू नो हेल्प आउट करेगा इस चीज़ के लिए. तो जस्ट राइट डाउन द एग्जाम्पल्स ऑल्सो. ओके. नेक्स्ट वन इज यूनिलेटरल रिसिप्ट्स एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स. यूनिलेटरल रिसिप्ट्स दैट इज ट्रांसफर पेमेंट्स. ठीक है, ये ट्रांसफर पेमेंट्स. Transfer payments are the receipts which the citizens of a nation get for free without having to provide any commodities or service in returns. Okay, इसीलिए इनको बोलते हैं unilateral receipts. Uni means single, lateral means sided. So one-sided payments, that is receipts and payments. Okay. देखो, those receipts which takes place without any service in return in the current period. That means हमें वो पेमेंट मिल रही है, हमें रिसिप्ट्स तो मिल रही है, बट वी आर नॉट गिविंग एनी गुड और सर्विस इन रिटर्न. दिस यू हैव ऑलरेडी डन इन नेशनल इनकम. ओके. यूनिलेटरल रिसिप्ट्स फॉर एग्जांपल, अभी प्रीवियस एग्जांपल जो अभी अभी हमने किया है उसमें आपने देखा था फॉरेन एड मिली थी उस कंट्री को $10 बिलियन की. दैट इज़ यूनिलेटरल रिसिप्ट्स. मतलब एड तो मिली है, हेल्प मिली है, ग्रांट मिली है, लेकिन उसके लिए कुछ कंट्री ने दिया नहीं है, कोई भी गुड या कोई भी सर्विस नहीं दी है. ठीक है. तो इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं यूनिलेटरल रिसिप्ट्स में, गिफ्ट्स, डोनेशंस एक्सेट्रा. अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखो. सपोज इफ अ पर्सन इज वर्किंग outside the domestic territory of a country, suppose there is an Indian citizen who is working in USA, he is earning some amount of money and he is remitting some part of his income to his family which is living in India. ठीक है, वो USA में काम कर रहा है, अर्न कर रहा है इनकम, और कुछ पार्ट अपनी इनकम का अपनी फैमिली को रेमिट कर रहा है जो कि इंडिया में रह रही है. राइट. तो ये जो कैश रेमिटेंसेज आती हैं बाय द पीपल सेटल्ड इन अदर कंट्रीज टू देयर फैमिलीज, ये आती हैं यूनिलेटरल यानी कि ट्रांसफर रिसिप्ट्स में. ठीक है. तो इसमें आता है गिफ्ट्स, डोनेशंस एंड कैश रेमिटेंसेज बाय द पीपल सेटल्ड इन अदर कंट्रीज टू देयर फैमिलीज. ये आएगा क्रेडिट साइड में. रिसिप्ट्स है ना, तो क्रेडिट साइड में आएगा. डेबिट साइड में आएंगी यूनिलेटरल मीन्स ट्रांसफर पेमेंट्स. दैट मीन्स अगर हमारी कंट्री किसी को गिफ्ट देगी, असिस्टेंस देगी, एड या इंडेमनिटीज, तो ये आएंगी यूनिलेटरल पेमेंट्स में. देयर इज़ वन मोर ट्रांजेक्शंस विच कम अंडर बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, दैट इज इनकम ट्रांसफर्स. ठीक है. इनकम रिसिप्ट्स एंड इनकम पेमेंट्स. इनकम रिसिप्ट्स में आ जाती है इन्वेस्टमेंट इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, लाइक इन्वेस्टमेंट इनकम लाइक इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन फॉरेन लोन्स. और इनकम पेमेंट्स में आ जाएगा पेमेंट मेड फॉर कैपिटल सर्विसेज लाइक इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स ऑन फॉरेन कैपिटल. ठीक है, मेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री. सो दिस इज ऑल अबाउट बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट.
लेट्स मूव टूवर्ड द एक्सप्लेनेशन ऑफ बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट. ठीक है, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट. देखो इसमें आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाइक FDIs, your equities, etc. External assistance, commercial borrowings, IMF, NR deposits, rupee debt services and other flows. Okay, इसका भी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं वन बाय वन. देखो, कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल इंटरनेशनल अंडरटेकिंग ऑफ एसेट्स. ओके, जितनी भी अंडरटेकिंग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स होती हैं एसेट से रिलेटेड, वो आती है कैपिटल अकाउंट में. एसेट क्या होता है, यू नो वेरी वेल. An asset is any one of the types in which wealth can be held. For example, stocks, bonds, government debt, etc. क्या होता है, किसी भी फॉर्म में अगर हम वेल्थ रख सकते हैं तो उसको हम एसेट बोलते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट डेट, एक्सेट्रा. तो ये जो कैपिटल अकाउंट है, दे शो चेंज इन स्टॉक मैग्नीट्यूड. दैट मीन्स इंटरनेशनल मूवमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल. ओके, सी द नेक्स्ट पॉइंट. परचेज ऑफ एसेट्स इज अ डेबिट ऑन द कैपिटल अकाउंट. अगर परचेज करते हैं एसेट, दैट विल बी डेबिटेड. इफ एन इंडियन परचेजेज अ UK कार कंपनी, इट एंटर्स कैपिटल अकाउंट अंडरटेकिंग्स एज अ डेबिट. ठीक है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है इंडिया के, तो ये क्या आएगा, डेबिट साइड में आएगा. ठीक. ऑन द अदर हैंड, सेल ऑफ एसेट्स लाइक सेल of the share of Indian company to a Japanese customer is a credit on the capital account. Right? Sale of assets. अगर सेल कर रहे हैं एसेट्स की तो क्या होगा, सपोज जापानीज कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो क्रेडिट आएगा, क्योंकि रिसिप्ट क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, क्योंकि रिसिप्ट है ये कैपिटल अकाउंट में. ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट मीन्स एक बार ब्रीफिंग कर लो इसकी. व्हेन द रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री बोरो फ्रॉम अब्रोड, we say they are importing capital. On the other hand, when the resident of a country is investing abroad, we say they are exporting capital. तो इसमें अगर हम borrowing capital करेंगे तो वो import में आएगा, अगर lending capital करेंगे तो वो export में आएगा. ठीक है, ऐसे ही अगर purchase of asset करेंगे तो वो debit side पे आएगा, और अगर sale of asset करेंगे तो वो credit side पे आएगा. right? Okay, there's one more thing. We actually this chapter I just wanted to talk about the marks distribution which is given by CBSE. ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जब भी आपको प्रिपरेशन करनी है बोर्ड एग्जाम की, तो आपको हमेशा करनी है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग. सिर्फ लर्न नहीं करना होता है टॉपिक्स को, एक टेक्निक होती है टू स्कोर गुड मार्क्स. वो टेक्निक क्या होती है, वो टेक्निक ये होती है कि पहले मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए चैप्टर का, फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी देखिए कि वो कौन से क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, और किस किस मार्क्स के लिए वो रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस. तो ये बता देती हूँ मैं आपको. मैक्रो इकोनॉमिक्स, यू नो दैट जो इकोनॉमिक्स का थ्योरी पेपर है क्लास 12th के लिए, वो होता है 80 मार्क्स का टोटल. ठीक है, और इसके दो पार्ट होते हैं. पार्ट ए इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड पार्ट बी इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स भी 40 मार्क्स का है और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी 40 मार्क्स का है. ठीक है, अब यूनिट 5 जो अभी हमने स्टार्ट करी है, दैट कंटेन्स 6 मार्क्स. ओके, दैट विल बी ऑफ 6 मार्क्स. इसमें 6 मार्क्स का आएगा, तो ये इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना है आपको. ठीक, अच्छा, नेक्स्ट इज ये जो अभी जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है, जब चैप्टर का एक्सप्लेनेशन सारे पार्ट्स फिनिश हो जाएंगे, आई विल बी टेकिंग दिस चैप्टर इन 3 पार्ट्स बेसिकली. व्हाट आई हैव प्लान्ड आउट इज व्हेन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर विल बी फिनिश्ड, I'll take some important questions for board examinations. I'll collect and I'll make a presentation on those important questions which are coming frequently, जो पिछले कई सालों से लगातार आ रहे हैं questions, type of questions for BOP. ठीक है, वो उसकी presentation I'll make for you. और part 4th में जब chapter का explanation finish off हो जाएगा तो we'll do that. Okay, and again because again I am asking again and again to drop your queries. So जो भी आपकी queries होंगी, if they'll not be solved, तो I'll answer all those queries. ठीक है, okay. Any other update from board point of view? So in this part, that means in part 4, I'll take that also, and any suggestion from your side will also be welcomed, right? So
just wait for the explanation of all those three parts, and after that in part 4th I'll be taking all these things. So keep watching all the parts of the chapter, right? Thanks for watching and listening to all the points carefully. Please jot down and note down all the important points along with the examples which I have given, and please drop your queries. Again, I am suggesting you, I am requesting you also to drop your queries in the comment sections, and I'll try to respond and solve all your queries. Okay, thank you so much. Do well. Best of luck.